Dear students, in last videos, we have studied Morgan's dihybrid cross experiments conducted on Drosophila melanogaster. And we have learned that he conducted two types of dihybrid crosses on the basis of the combination of characters. Like in one type of dihybrid cross, he made combination of eye color with the body color. And in another cross, he made the combination of eye color with that of wing size. Two different combination of characters were studied in both the dihybrid crosses, and he was expecting that his dihybrid cross experiments results will be exactly same like that of Mendel. As we all know that in Mendel's dihybrid cross experiment, in F2 generation, phenotypic ratio was 9:3:3:1. But here in this Morgan's experiment, the ratio was totally different. And interestingly, it was not only deviating from the Mendel's dihybrid cross ratios, but also the two dihybrid crosses, means having two different combination of characters, were also showing different results. In one of the cross, the parental combinations were 98.7%, means the 98.7% progenies were like their parents, while only 1.3% progenies were like or they were showing the recombination of the characters. Parental means the character combinations were exactly like that of their parents. For example, if the yellow body was in combination with white eye color, that means the progenies were having the same type of combinations in F2 generation. 98.7% were that were like their parents. While in another cross, in another dihybrid cross where the eye color was in combination with that of wing size, the parental and recombination ratios were totally different from the first dihybrid cross experiment. In the wing size and eye color combination, the ratios were 62.8% parental combinations while 37.2% recombinant combinations. So this was very surprising. Morgan was aware of this fact that the genes for these three characters, means the body color, eye color and the wing size, they are located on the same chromosome, and that was the sex chromosome. Here I have shown this chromosome. Here I am showing that these blackened areas, these dark areas are showing the position of genes, and this gene is showing position of the character. This area is showing the gene which is controlling the character body color, and this area is showing the position of the gene which controls eye color, and this area is representing the gene which is controlling the wing size. So here I have shown that on the same chromosome, the same sex chromosome, all these three genes which were studied in different combination in two types of dihybrid crosses by Morgan, they were located on the same chromosome. Then why the results were different? Why in one case the parental combinations were more, and in another cross parental combinations were slightly less? What were the reasons behind this? Let's discuss here how Morgan interpreted his experimental results here. Okay, तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि ये वो क्रोमोसोम है जिस पर उन सभी कैरेक्टर्स की जीन्स दिखाई गई हैं जो मॉर्गन ने अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी किए थे। एक पहली क्रॉस में उसने इन दोनों जीन्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था, ये था बॉडी कलर और ये है आई कलर। फर्स्ट डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर की इन दोनों जीन्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था, इनके इनहेरिटेंस को देखा था, और जब इनके इन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके उन्होंने अपने रिजल्ट्स को काउंट किया, so the parental combination in these cases it was very high. Parental combination were 98.7%.
While he performed another experiment, dihaploid experiment, combining these two genes together. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जीन कॉमन ली गई है। पहले यही आई कलर के जीन को बॉडी कलर के साथ स्टडी किया था। दूसरे डाइहैप्लोइड एक्सपेरिमेंट में आई कलर जीन को भी लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी जीन, जैसे यहाँ पर विंग साइज के जीन को स्टडी किया गया। एंड एक ही क्रोमोसोम पे होने के बावजूद भी इन दोनों टाइप के क्रॉसेस, जिसमें एक जीन कॉमन भी है, आई कलर जीन, दोनों ही टाइप के डाइहैप्लोइड क्रॉसेस में स्टडी की गई है, लेकिन कॉम्बिनेशंस जो पेरेंट्स ने बनाए गए थे वो F1 और F2 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाई दिए, लेकिन उनकी रेशो अलग थी। जब इन दोनों जीन्स को स्टडी किया गया तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा मिले, और जब इन दोनों जीन्स को स्टडी किया गया, मींस आई कलर और विंग साइज के कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया गया, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम मिले और रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिली। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो मॉर्गन ने कॉन्सेप्ट दिए थे उनको स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम्स के डायग्राम्स बनाए हैं। यहाँ आपको दो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये एक पेयर दिखाया गया है, दिस इज द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड हम इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? Because they have the same size, shape, but they are essentially having the same type of sets of genes. जो भी genes एक क्रोमोसोम पे है, बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे क्रोमोसोम पर उसी पोजीशन पर सेम कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन्स होती हैं। और जैसे यहाँ पर कुछ सिंबल्स को यूज किया गया है, A, B, C, D, E, F, ये कुछ सेगमेंट्स दिखाए गए हैं। ये सेगमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ इन एरियाज पर जीन्स की लोकेशन है। जैसे यहाँ पर भी जीन्स की लोकेशन दिखाई गई है। यहाँ सिर्फ उन एरियाज को हाईलाइट किया गया है जिन्हें मॉर्गन ने स्टडी किया था, अदरवाइज ये जो पोर्शन जो ब्लैक छोड़े गए हैं, यहाँ इन एरियाज में भी जीन्स हैं। मींस ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स जो है ये कुछ सेगमेंट्स में बटा हुआ है, एंड इन दिस सेगमेंट्स आर नोन एज जीन्स। तो यहाँ पर ये सेगमेंट्स दिखाए गए हैं, और इन सेगमेंट्स को हमने कुछ नाम दिए हैं, जैसे A, B, C, D, E and F। यहाँ मैंने जीन्स को जो रिप्रेजेंटेशन दी है वो स्मॉल लेटर्स में दी है। बिल्कुल इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसके जैसा है क्रोमोसोम, वो यहाँ पर उसमें सेम पोजीशन पे और वही जीन्स दिखाई गई है, लेकिन यहाँ लेटर्स की रिप्रेजेंटेशन अलग कैपिटल लेटर्स में की गई है, जैसे कैपिटल A, B, C, D, E and F। ये ब्लैक कलर से दिखाया गया है या रेड से दिखाया गया है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इनमें से एक मैटरनल है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। ये हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो एक क्रोमोसोम मदर से और दूसरा क्रोमोसोम फादर से मिलता है। मींस दिस होमोलोगस पेयर हैज one chromosome from mother which is known as the maternal chromosome, other chromosome is from the father which is known as the paternal chromosome। तो सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इन दो कलर से यूज किया है, और जो यहाँ पर स्मॉल या कैपिटल लेटर्स का यूज किया है ये डिपेंड करता है कि ये एलील्स सेम टाइप की है या अलग टाइप की है। सेम टाइप की है तो हम सेम सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एलील्स A लिखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर के लिए सेम टाइप की एलिलिक फॉर्म है, लेकिन यहाँ डिफरेंट दिखाने का मतलब है कि एक जीन की दो अलग अलग फॉर्म्स, एक फॉर्म यहाँ पर और दूसरी फॉर्म यहाँ पर है, लेकिन कैरेक्टर्स वही कंट्रोल कर रही हैं। सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर विल बी कंट्रोल्ड बाय बोथ दीज सेगमेंट्स। यहाँ पर स्मॉल a एंड कैपिटल A दोनों ही एक कैरेक्टर को, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, जैसे हाइट को कंट्रोल कर रही है। इसे नेक्स्ट जीन है, मान के चलिए कि ये सीड की शेप को कंट्रोल कर रही है। C जीन है वो फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कि ये सेगमेंट्स किन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दोनों सेम टाइप की जीन्स लिए हुए क्रोमोसोम्स हैं, एंड इनमें से एक मैटरनल है एक पैटर्नल है। इन पर जो ये सेगमेंट्स दिखाए गए हैं
ये जीन्स की पोजीशन दिखाई गई है। अब एक क्रोमोसोम को देखिए, हर क्रोमोसोम में आपको यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रही है। मीन्स अगर आप इनका लॉन्गिट्यूडनल हाफ देखिए, ये देखिए, ये दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ ए क्रोमोसोम। यहाँ पे इस क्रोमोसोम को अगर आप स्प्लिट कर देते हैं तो वो जो स्प्लिट करने के बाद जो आपके पास पोर्शन मिला, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। तो ये पूरा एक क्रोमोसोम दिखाया गया है और इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स है। If the chromatids are belonging to the same chromosome, अगर जैसे इस क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड्स दिखाई गई हैं, these chromatids are known as sister chromatids. While अगर हम इन दोनों पार्ट्स को लेबल करते, जैसे एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम की और दूसरी क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम की, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में इन दोनों क्रोमेटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। Sister chromatids belong to the same chromosome, while non-sister chromatids belong to different chromosomes. Okay, so this is the pair of homologous chromosome. Now come to this area. अब देखिए, जब meiosis process, आपको मालूम है गैमेट फॉर्मेशन meiosis प्रोसेस से होती है, एंड 11th क्लास में हमने meiosis प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा है। meiosis में प्रोफेज फर्स्ट डिवीजन जब की जो फेज चलती है, meiosis फर्स्ट ऑफ the cell division, there is prophase first, and prophase first में भी पैकेटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। You can see here, I am showing here that the non-sister chromatid, देखिए ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? The overlapping is taking place between the non-sister chromatids। से ब्लैक वाला जो क्रोमेटिड है और ये जो रेड वाला क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग ए क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए ये क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइज़मेटा। काइज़मेटा बनने के बाद जिस एरिया पर ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है। देयर विल बी mutual exchange, there will be reciprocal exchange of the segments between the non-sister chromatids of homologous chromosome। ये ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं homologous chromosomes की non-sister chromatids की, उनके बीच में ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग के बाद जिस एरिया पर वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, सिर्फ वो एरिया एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज कर लेंगे। और इसको इलस्ट्रेट किया है हमने यहाँ इस डायग्राम में। आप देखिए, जब ये ओवरलैपिंग करने के बाद, एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है ये रेड एरिया जो इस क्रोमोसोम को बिलोंग करता था, वो यहाँ पर आ गया है, शिफ्ट हो गया है, एंड यहाँ से इसका एरिया यहाँ शिफ्ट हो गया है। देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज। जितना सेगमेंट यहाँ से इस पर आया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही सेगमेंट यहाँ पर आ गया है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि ये पीस आने का मतलब है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 2 जीन्स की शिफ्टिंग दिखाई है। ये जितना भी एरिया शिफ्ट हुआ है, इस एरिया में 2 जीन्स थी, बी एंड सी। तो बी एंड सी जीन इस क्रोमोसोम की यहाँ पर आ गई है और इस क्रोमोसोम से इस दूसरे क्रोमोसोम पे चली गई है। तो कैन यू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है? क्या आप जीन्स का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? यहाँ देखिए, कैपिटल ए then small b, small c from this segment, capital D, E and F। and इस क्रोमेटिड पे देखिए, यहाँ पर small a, then capital B, capital C, D, small d, E and F। ये जो एक्सचेंज होने के बाद सेगमेंट बना है, पूरा जो क्रोमेटिड का जो कॉम्बिनेशन बना है, इस पूरे क्रोमेटिड को हम कहते हैं क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स, और इसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट। ये रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड है। ये पीस, ये क्रोमेटिड जिस भी सेल में जाता है, उस सेल में 2 जो आपके कॉम्बिनेशन पहले थे, ए बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये जो कॉम्बिनेशन था ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो जिस भी सेल के अंदर ये क्रोमेटिड जाएंगे या ये वाला क्रोमेटिड जाएगा, दे विल बी शोइंग शफलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स।
रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हम लेके चले हैं, जैसे अगर b स्मॉल b एंड स्मॉल b का कॉम्बिनेशन अगर हम ले रहे थे, मान लीजिए ये येलो बॉडी और यहाँ पर आई कलर ले लेते हैं व्हाइट कलर, ये जीन हम लेके चले थे और साथ में यहाँ सपोज माने कैपिटल A इज रिप्रेजेंटिंग द बॉडी कलर लाइक सॉरी विंग साइज लगा लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए विंग साइज, ये 3 कैरेक्टर्स है, सपोज यहाँ स्मॉल a लिख देते हैं विंग साइज एंड दैट इज मिनिएचर, ठीक है। अगर ये 3 फीचर्स A B C स्मॉल लेटर्स स्मॉल a स्मॉल c स्मॉल b, अगर ये जीन्स इन्हें कंट्रोल कर रही हैं और क्रॉसिंग ओवर के बाद आप स्टडी कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेनिस में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब गैमीट फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट से प्रोजेनिस डेवलप होंगी, तो आप देखना चाहते हैं कि क्या पेरेंट्स में जो कॉम्बिनेशन था कि उनका बॉडी का कलर येलो था, व्हाइट था, उनके आइज का कलर और उनकी बॉडी जो विंग साइज थे वो मिनिएचर साइज के थे, क्या हमें कुछ ऐसा ही मिला है? तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिले जैसे यहाँ पर कैपिटल A स्मॉल b एंड c का कॉम्बिनेशन है स्मॉल c, b एंड स्मॉल b एंड स्मॉल c आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इस प्रोजेनी में कॉम्बिनेशन क्या आएगा? द कॉम्बिनेशन विल बी नॉर्मल विंग साइज, b येलो बॉडी कलर एंड c द व्हाइट आई कलर। आप देखें हमारा जो पहला कॉम्बिनेशन था पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, दिस पेरेंटल कॉम्बिनेशन स्मॉल a b c d e, इस कॉम्बिनेशन में ये कैरेक्टर्स का फिनोटाइप आपको दिखाई देता, येलो बॉडी आनी चाहिए थी, व्हाइट आईज आनी चाहिए थी और मिनिएचर विंग साइज होने चाहिए थे। लेकिन जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है तो कुछ प्रोजेनिस हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें ये कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलता, येलो बॉडी कलर व्हाइट आई कलर मिल रहा है लेकिन उसके विंग्स का जो साइज है वो नॉर्मल मिल रहा है। ये नॉर्मल विंग साइज उस प्रोजेनी में कहाँ से एंट्री हुई, ये कॉम्बिनेशन कैसे आया? बिकॉज यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्रॉसिंग ओवर में जीन्स की शफलिंग हो जाती है, ओके। इसलिए जो भी हमें पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं वो इस वजह से मिलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में जिन जीन्स की शफलिंग हो जाती है वो कैरेक्टर्स हमें रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। जिन कैरेक्टर्स की शफलिंग नहीं हो पाती, जैसे इस एरिया में कोई शफलिंग नहीं हुई है, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, या आप इस क्रोमेटिड में देखिए यहाँ सिर्फ 2 जीन्स की शफलिंग हुई है इस क्रोमोसोम के साथ, बाकी जीन्स का जो भी कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इन कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो आपको सभी पेरेंटल नजर आएंगे। अगर आप इन दोनों को स्टडी कर रहे हैं या स्मॉल इस एरिया के साथ आप डी को स्टडी कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेशंस नजर आएंगे। द रिकॉम्बिनेशंस आर रिजल्ट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दिस वाज पोस्टुलेटेड बाय मॉर्गन। इसीलिए उन्हें या मेंडल को भी रिकॉम्बिनेंट्स अपनी प्रोसेस में मिलते थे। आपको मालूम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना। मेंडल के जो भी स्टडीज थी वो फील्ड वर्क थी, उस वक्त माइक्रोस्कोपिक स्टडीज नहीं चल रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो दिया था, जब उन्होंने कहा कि एक जीन दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, वो किसी दूसरे जीन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकती है, that can be illustrated here also। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में शफलिंग होती है और जीन्स दूसरी जीन्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए फ्री होती है। लेकिन यहाँ पर जो मॉर्गन स्टडी करना चाहते थे वो इस बात पर बिल्कुल कंफर्म थे कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही अप्लाई होता है, रिकॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। लेकिन ये इसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा मिल रहे हैं और कुछ में रिकॉम्बिनेंट्स कॉम्बिनेशंस
दूसरी क्रॉसेस से ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसा किस वजह से है? तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसी क्रॉसिंग ओवर से दी। उन्होंने कहा कि जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम पर होती हैं, किसी भी एक क्रोमोसोम को आप ले लीजिए, ये देखिए जितने भी हमने जीन्स या सेगमेंट्स दिखाए हैं, दिस ऑल जीन्स आर कॉल्ड एज द लिंकेज ग्रुप्स। इनको हम लिंकेज ग्रुप्स कहते हैं। ये ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है जीन्स का, ये एक साथ जाने की टेंडेंसी रखता है, किसी भी प्रोजेनी में जाने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन कौन सा जीन किसके साथ ज्यादा जाने की टेंडेंसी रखता है, ये वेरी कर सकता है। देखिए यहाँ पर पूरा एक क्रोमेटिड ऐसे के ऐसा बिना क्रॉसिंग, जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया देखिए, इस पूरे क्रोमेटिड की जीन्स एज इट इज प्रोजेनिस में चली जाएंगी। तो जो भी कॉम्बिनेशन इन जीन्स के हैं, कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करती हैं, एज इट इज हमें प्रोजेनिस में दिखाई देंगे, हमें कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये क्रोमेटिड मिलता है तो यहाँ पर हमें नए कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। दैट मीन लिंकेज ग्रुप जो होता है, जितनी भी सेगमेंट्स में जितनी भी पूरे इस क्रोमेटिड में जीन्स होती हैं, सेगमेंट्स होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू मूव टुगेदर। वो मूव करने की टेंडेंसी रखती हैं, एक साथ प्रोजेनिस में जाने की टेंडेंसी रखती हैं। लेकिन इन लिंकेज ग्रुप को शफल किया जा सकता है when there is crossing over process। जब क्रॉसिंग ओवर चलेगी तो ये लिंकेज ग्रुप्स जो हैं, जो अभी देखने में लगता है कि एक साथ जाएंगे, इनके अलग होने के चांसेस क्रॉसिंग ओवर से हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जब क्रॉसिंग ओवर दिखाया था तो बी एंड सी जो बिल्कुल साथ साथ थी जीन्स, इनके एक साथ जाने के, अगर यहाँ से ये पीस इस क्रोमोसोम से, इस रेड क्रोमोसोम से ये पीस एक्सचेंज हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए इस पीस में कौन सी जीन्स ज्यादा टेंडेंसी रखती हैं कि वो साथ साथ दूसरे क्रोमोसोम पर जाएंगी। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बी एंड सी बिल्कुल साथ साथ है, डी बिल्कुल साथ है। तो अगर कोई पीस ओवरलैप करता है तो जो जीन्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, वो पीस एक साथ दूसरी जगह जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे क्योंकि ये क्लोज है। लेकिन बी, सी, डी और ई में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, बी एंड सी ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं कि वो साथ जाएंगी। बी और डी में अगर बी सी के कंपैरिजन में डी से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो बी की जो टेंडेंसी है डी के साथ जाने की वो कम हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर आपने इसको दिखाया भी नहीं है। ऐसे ई या एफ की अगर बात करें तो उनकी बी के साथ जाने की टेंडेंसी और ज्यादा कम होती जाती है। क्या हो अगर ये पूरा पीस यहाँ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए, अगर ये पूरा पीस यहाँ ओवरलैप हो जाए और एक्सचेंज हो जाए, ऑब्वियसली ये सारे के सारे जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये वेरी करता है कि कौन सी जीन ज्यादा एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, टेंडेंसी रखती है कि वो अगर ये बी अगर शिफ्ट होती है तो बी के साथ सी के जाने की चांसेस ज्यादा हैं बजाय ई या एफ के। सो व्हाट वी वांट टू कन्वे हियर दैट जितना ज्यादा डिस्टेंस जीन्स के बीच में बढ़ता जाएगा, उनके सेपरेशन के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, इनमें ये जो जीन्स एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, दिस सेगमेंट हैज बी एंड सी, two genes, they have more tendency to move together or get separated from other genes than the other segments of these chromosomes। जितना ज्यादा जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्रॉसिंग ओवर में उनके चांस अलग होने के उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं, और वो जितना ज्यादा पास होंगे वो उतना ही एक साथ जाने की टेंडेंसी रखेंगे। दिस इज लिंकेज। Now let's define linkage. Linkage is
टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू मूव टुगेदर, एक साथ जाने की जो टेंडेंसी होती है, जीन्स की टेंडेंसी को हम लिंकेज कहते हैं। एंड लिंकेज की वजह से ही पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मींस जो जीन्स पेरेंट्स के कॉम्बिनेशंस में है, जैसे स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है, स्मॉल सी डी ई, ये जो कॉम्बिनेशन है पेरेंट्स का, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये तब ज्यादा आपको दिखाई देगा जब जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा कम होगा तब ये लिंक रहेंगी, और डिस्टेंस जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा वैसे ही ये सेपरेट होने के चांसेस रखेंगी। तो एक बार यहाँ पर देखिए, इस पहली क्रॉस में जहां पर ये दो कैरेक्टर्स को साथ में लिया गया था जीन्स, आप देखेंगे पोजीशन, यहाँ पे मैंने इनको रेड से इनके बीच में गैप दिखाया कि कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। Here the distance between these two genes is shown very less, बहुत कम है, बजाय ये आई कलर और इस विंग साइज के जीन्स के बीच में यहाँ पर। तो अगर आप लिंकेज फिनोमिना यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप बताएं कि बॉडी कलर और आई कलर की जीन्स का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो, या आई कलर और विंग साइज का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इनमें से कौन सी जीन है जो आई कलर के साथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करेगी या रिकॉम्बिनेशन शो करती है? अब आप देखिए बॉडी कलर और आई कलर में गैप काफी कम है, तो ये दोनों जीन्स एक साथ जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखती है। जैसे कि यहाँ पर बी जहां जा रही है साथ साथ सी भी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है। लेकिन अगर इस आई कलर को विंग साइज के साथ स्टडी करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बी तो आई कलर है और ई जो है क्या है, सोच विंग साइज को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बी के साथ ई के जाने की संभावनाएं हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि बी ई के साथ चली जाए? पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। सेगमेंट अगर इतना एक्सचेंज होगा तो ये इसके साथ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कितनी है? कम है, क्योंकि सेगमेंट्स का कितना पार्ट एक्सचेंज हुआ ये डिपेंड करता है। अगर बड़ा पीस अगर एक्सचेंज होता है फिर तो ये चली जाएगी, तो हमें ये नहीं कहना कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है, याद रखना, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इनके एक साथ जाने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती जाती है। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब ये दो जीन्स को स्टडी किया गया तब पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा मिले 98.7, क्योंकि बहुत क्लोज जीन्स थी, दे आर लिंक्ड जीन्स। एंड द आई कलर जीन ने विंग साइज को जब एक साथ स्टडी किया तो हमें रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा मिले 37.2%, यहाँ सिर्फ 1.3% का कॉम्बिनेशन आया। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट्स आने की चांसेस हमेशा होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, चाहे वो पास है बिल्कुल चाहे वो दूर है जीन्स, लेकिन वो परसेंटेज कम ज्यादा तब दिखाई देगी जब उनके बीच में डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वो पास होंगी वो उतना ही एक साथ जाने की टेंडेंसी रखेंगी। एक साथ जाने की टेंडेंसी रखने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, और ऐसे ही जितना ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जाती है, इनके एक साथ जाने के चांसेस कम होते जाते हैं। मोर द लिंकेज लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन, मोर विल बी द रिकॉम्बिनेशन लेस विल बी द लिंकेज। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिए। लिंकेज पूरे इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी जीन्स है लिंक तो ये सभी हैं, लेकिन जितने ज्यादा ये एक दूसरे के साथ होंगे, जैसे ए के साथ बी ज्यादा लिंक्ड है या ई के साथ एफ ज्यादा लिंक्ड है, और एफ और ए के बीच की बात करें तो ये कम लिंक्ड है। लिंक्ड है सभी लेकिन कम है या ज्यादा, ये इनके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर ए और बी को, अगर इन दो कैरेक्टर्स इन दो जीन्स को आप स्टडी कर रहे हो, इनके कंट्रोल कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो, तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप ए और डी को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये इनके बीच में गैप काफी है,
and this linkage phenomena was very helpful later, या आज भी हम बात करें कि लिंकेज से हमें जेनेटिक्स में कहाँ हेल्प मिल सकती है. दिस लिंकेज इज यूजफुल इन जीन मैपिंग. एक क्रोमोसोम पर किसी भी जीन की पोजीशन पता लगानी है, जीन मैप्स तैयार करने हैं, वाई कहाँ है,